Hello class, as we have started our second chapter that is inverse trigonometric functions. देखो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल भी बोला था that first we have to study your 11th class trigonometry. After that you can easily understand this inverse trigonometric functions. So we have completed our exercise 2.1. Now we are going to start our exercise 2.2. But before proceeding this, we have to learn some formulas which are for the inverse trigonometric functions. देखो जैसे कि फॉर्मूले होते थे सेम ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वैसे ही फॉर्मूले यहाँ पर है, बट क्या हो जाएगा, these were for the those were for the trigonometry and these are for the inverse trigonometric function. So the first formula is what is sine inverse 1 by x. The first is what is our sine inverse 1 by x, and this is equals to cosec inverse x. But the trigonometric formula was 1 over sine x is equals to cosec x. तो both are similar, दोनों सेम है, बस किसका फर्क है, the difference is between the angles. Now we know this formula, now we have to prove this. So how to prove this formula? So to prove this, we have to let that our sine inverse 1 by x is equals to y. That means we have to find out the value of y. So from here you can see that 1 over x will be equals to sine y, and if 1 by x is equal to sine y, then x will be equals to 1 by sine y. But 1 by sine y is equals to cosec y, है ना. So from here you will see that x is equals to cosec y. So comparing these two, we will have cosec inverse x is equals to y. So this is our equation number 1, this is our equation number 2. Comparing equation 1 and 2, you can see that both are equal to y. So from here you can say that sine inverse 1 by x is equal to cosec inverse 1 by x. So this is the first and the important formula for this inverse trigonometric functions. The second is cosec inverse 1 by x. This will be equals to your sec inverse 1 x. ठीक है, so this is your second formula, and the third one is for the tangent. That is tan inverse 1 by x is equals to cot inverse x. But remember one thing, that cos for the inverse trigonometric functions you have to follow the table. जो कल टेबल बताई थी ना, बिल्कुल वो टेबल फॉलो करनी है. दैट इज द टेबल फॉर द रेंज एंड द डोमेन. सो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट होगी उस बात का ध्यान रखना है, और किसके जो आंसर निकलेगा उस बात का भी ध्यान रखना है. तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट मत करना जो उसकी रेंज नॉट डिफाइंड निकले. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ द फॉर्मूलाज. नाउ द सेकंड टाइप आर व्हाट इज आवर साइन इनवर्स minus x. That is, if you are having minus x, so the trigonometric formula was, if you are having sine minus x, then that was equals to minus sine x. ये भी बिल्कुल वैसा ही है. एक फॉर्मूला याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री वाला याद कर लो, उसके साथ कंपेयर करके इसका भी फॉर्मूला याद कर सकते हो. साइन इनवर्स माइनस एक्स, सो लेट दिस इज इक्वल्स टू योर वाई. सो फ्रॉम हियर यू विल हैव माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन दिस साइड यू कैन से दैट मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव साइन वी विल हैव एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन वाई, और माइनस साइन को अंदर लेके जा सकते हैं. दैट मीन्स दिस विल बिकम आवर साइन माइनस वाई. So x is equal to minus sine y. Now taking sine to this side, this will become our sine inverse x, and this is equals to minus y. But y this is equal to our minus y. But we know that y is equals to our sine inverse minus x, है ना. So negative sign को भी इधर ले आओ. That means minus sine inverse x is equals to y, but y is equal to sine inverse minus x. So from here you can say that sine inverse minus x is equals to minus sine inverse x. ऐसे ऐसे निकल गई, sine inverse minus x is equal to minus sine inverse x. That is for the sine function, negative sign taken can be taken as common. Negative sign यहाँ से बाहर निकाल सकते हो. And similarly for the tangent
Similarly, for the tangent minus x, this will be equals to minus tangent inverse x. इससे बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड आउट करने के लिए यूज किए थे. बोला था ना 3 के लिए सिंपल माइनस होगा और 3 के लिए पाई में से सब्ट्रैक्शन होगी. 3 के लिए माइनस किस वजह से हुआ था ये ध्यान से देख लो. इस वजह से माइनस हुआ था जो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर की वजह से. Now for the cosec. Cosec inverse minus x, this is also equals to minus cosec inverse x. So these are the formulas for the sine, tangent and the cosec. If you are having the negative of the angle, then this will become our negative as outside. Now the third type of formulas. If you are having cos inverse minus x, if you are having cos inverse minus x, then what will be its answer? So cos के लिए तो हम डायरेक्ट इसका माइनस साइन अप्लाई कर ही नहीं सकते, because cos minus x. So you can see that in the trigonometry, cos minus x is equals to our cos x. That means cos का जब भी इनवर्स करोगे, मीन्स cos का जब भी नेगेटिव होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा. बट आंसर के अंदर क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है ना. सो इसको पॉजिटिव के स्टेप से नेगेटिव के स्टेप से फॉर्म करना है. सो लेट दिस इज इक्वल्स टू y. सो फ्रॉम हियर माइनस x विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स y. सॉरी यार इधर आके तो सिंपल cos में फॉर्म होगा. सो cos y. इफ यू टेक नेगेटिव साइन दिस साइड, नेगेटिव साइन इस तरफ लिया, अंदर की तरफ भेजा, तो इसको क्या बना देगा, वो पॉजिटिव ही फॉर्म कर देगा. दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस cos y, और माइनस को अंदर भेजो, दिस विल बिकम अवर माइनस y एंड दिस इज अवर cos y. बट x तो cos y के इक्वल है ही नहीं. x किसके इक्वल है, माइनस cos y के इक्वल. तो इसको कैसे सोल्व करना है, मीन्स ये वाला प्रोसीजर हम फॉलो कर ही नहीं सकते, बिकॉज cos y इज नॉट इक्वल्स टू x. cos y is equals to our minus x. That means we can't follow this procedure. तो प्रोसीजर अब क्या होगा, उसके लिए देखो सिंपल सा क्या करना, पाइस का यूज करेंगे. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट आवर x इज इक्वल टू माइनस cos y. तो माइनस cos y, दिस कैन बी रिटन एज cos pi minus y. You can say that cosecant pi minus y, this is equals to our minus cos y. ये जो मेथड है ये ध्यान कर लो, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा. माइनस cos y जब भी होगा, दैट कैन बी रिटन एज cos pi minus y. cos pi minus y. That means from here you can say that x is equals to pi minus y. ठीक है, बस अब अगर इतना कर लिया तो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है. सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट आवर कोस को भेजो वापस इस तरफ, कोस को भेज दो x के साथ. दैट मीन्स कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस y एंड y. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज आवर पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस x. ठीक है, सो दिस इज आवर कोस इनवर्स माइनस x, कोस इनवर्स माइनस. बट ये जो नेगेटिव साइन है, ये तो इसको क्या फॉर्म कर देगा, पॉजिटिव फॉर्म कर सकता है ना, बिकॉज ओके व्हाट वी नीड, यहाँ से इक्वल कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस x. वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस. इसको एक तरफ रखो और बाकी को दूसरी तरफ भेज दो, या फिर एक काम करो, इसको इधर सेंड करो और इसको अपना इधर सेंड करो. दैट मीन्स कोस इनवर्स माइनस x विल बिकम इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x. So this is your formula that you have to learn. Cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं that if we are having the cosecant function, secant function and the cotangent function, then we have to subtract the function from the pi, and these are the same formulas we are proving here. Now for the cos we have cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. For the secant inverse minus x, this will be equals to pi minus secant inverse x. And for the cot function, cot inverse minus x, this is also equals to pi minus cot inverse x. प्रोसीजर बिल्कुल सभी के लिए सेम फॉलो करना है. इक्वल टू y लेट करना है, x इज जो भी गिवन था इक्वल टू y मानना है, x की वैल्यू को निकालनी है, x इज इक्वल टू माइनस कोस y. अगर कोट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोट y इज इक्वल टू कोट पाई माइनस y, और यहाँ से वैल्यू अपनी फाइंड आउट करके दोनों इक्वल. सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न. ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं. आफ्टर दैट यू आर हैविंग
formula that if you are having sin inverse x, चलो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है. द फॉर्मूला इज sin inverse x plus cos inverse x. What is this equals to? ठीक है, तो जैसा कि अपने पास करते थे कि साइन नहीं, वो वाला फॉर्मूला तो इसमें फॉलो नहीं होगा, ये अलग फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड नहीं है, तो इसको अलग से याद रखना. साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू. ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू. एंड हाउ दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई टू? यू कैन सी हियर, let sin inverse x is equals to y. So after solving this, we will have our x is equals to sin y. And the simple sir, x is equal to sin y. But sin y, we know that sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta. तो पता है that sin theta can be written as cos pi by 2 minus theta. That means we can write down sin y as cos pi by 2 minus y. So from here you can see that x is also equals to cos pi by 2 minus y. If you compare these two, and from here cos inverse x will be equals to pi by 2 minus y. बीच वाले टर्म को अपना भूल जाओ, इसको सोल्व किया, cos को टेकिंग द cos टू द लेफ्ट हैंड साइड, वी विल हैव cos इनवर्स x is equal to pi by 2 minus y. But okay, let's take y to this side. This will become our cos inverse x plus y. Plus y, but y is equal to sin inverse x. That means sin inverse x is equals to pi by 2. So this is the another formula, that cos inverse x plus sin inverse x is equals to our pi by 2. After that, the same two formulas are for the tangent inverse x plus cot inverse x. This is equals to pi by 2, as well as our secant, cosec inverse x plus secant inverse x. These are also equals to pi by 2. So these are the formulas that you have to learn. तीन फॉर्मूले ये हो गए, तीन पहले के थे, तीन उससे पहले और तीन सबसे पहले. टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 4 टाइप के हमारे पास फॉर्मूले हो चुके हैं, 4 टाइप के 3 फॉर्मूले. दैट मीन्स अब तक हमारे पास टोटल 12 फॉर्मूलाज हो चुके हैं. एंड दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न. इसके बाद अपने पास टेंजेंट के फॉर्मूले. ये जो फॉर्मूले करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये तो इजीली याद कर सकते थे. नाउ द फॉर्मूला इज, इफ यू आर हैविंग टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, tangent inverse x plus tangent inverse y, then what will be its equals to? This is equals to our tangent inverse x plus y divided by 1 minus xy. अब इस फॉर्मूले के दो केसेस हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये दो के इक्वल होगा. एक तो ये फॉर्मूला है, एंड द सेकंड वन इज दिस इज आल्सो इक्वल्स टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई. दोनों के ही इक्वल है, बट वो कंडीशन क्या होगी? इफ यू आर हैविंग एक्स वाई, if you are having xy is less than 1, then this formula is applicable, and if you are having xy is greater than 1, then this formula is applicable. So let's prove these formulas. So from here, if you put tangent inverse x equals to theta and tangent inverse y is equals to phi, यही मेथड है करने का, इसके अलावा तो कोई मेथड है ही नहीं. दोनों को क्या करो, थीटा और फाई के इक्वल पुट करो, या फिर किसी के भी इक्वल पुट करो, जो भी तुम अपना चाहते हो. सो पुट देम इक्वल. सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट फाई. नाउ वी नो दैट our tangent x plus phi means tangent x plus phi नहीं, theta plus phi. tangent a plus b, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, tangent x plus y is equals to tangent x plus tangent y divided by 1 minus tan x tan y. ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल एज इट इज सेम फॉर्मूला यूज करना है. दैट मीन्स टेंजेंट थीटा प्लस फाई, दिस विल बी इक्वल्स टू आवर टेंजेंट थीटा plus tangent phi and divided by 1 minus tangent theta tangent phi. So this is your formula.
but we know that our tangent theta is equal to x and tangent phi is equals to y. That means this can be written as x plus y divided by 1 minus xy. So बीच वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया एंड नाउ दीज टू टर्म्स आर इक्वल एंड इफ दीज टू टर्म्स आर इक्वल दैट मीन्स थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy. But what is our theta? Theta plus phi. What is our theta plus phi? Theta is our tangent inverse x and phi is our tangent inverse y. So from here you can see that our tangent inverse x plus tangent inverse y is equals to 1 minus x plus y divided by 1 tangent inverse x plus y divided by 1 minus xy. So this is the formula that you have to learn. Similarly you can prove that tangent inverse x minus tangent inverse y is equals to tangent inverse x minus y divided by 1 plus x y. So this is the formula for the negative sign. जब दोनों टेंजेंट का नेगेटिव होगा देन यू कैन यूज द फॉर्मूला. नाउ मैंने बताया था यहाँ पर दो फॉर्मूले होंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी आर हैविंग एक्स वाई इज लेस देन 1. नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला व्हेन वी आर हैविंग ग्रेटर देन 1. तो उसके लिए बस सेम फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाई करना है. बट एक बात का ध्यान रखना that tangent inverse x plus tangent inverse y is equals to tangent inverse x plus y divided by 1 minus xy. ये होता था if xy is less than 1. so less than 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंदर की तरफ क्या होगा नेगेटिव साइन आएगा और उसको मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव ही साइन रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. बट दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy if xy is greater than 1. और ये किस में से माइनस होगा? पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो पाई में से पाई के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज सेकेंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ये अब किस में लाई करेगा? इन द थर्ड क्वाड्रेंट. इन द थर्ड क्वाड्रेंट द टेंजेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि दोनों क्या क्या है पॉजिटिव का रखा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सो वी हैड डन पाई प्लस. सो पाई प्लस क्यों कर रखा देखो बिकॉज इफ यू विल हैव एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो नीचे वाला साइन क्या फॉर्म होगा? नेगेटिव का फॉर्म होगा. नेगेटिव की वजह से बाहर क्या निकलेगा? नेगेटिव साइन निकलेगा. लेकिन जो आंसर के अंदर हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. तो उसकी वजह से क्या कर दिया? वैसे इसको पाई के साथ इसका एडिशन कर दिया. ठीक है, नाउ दोनों फॉर्मूले अलग कंडीशन में यूज होंगे तो दोनों को बस याद कर लेना. इसमें पाई प्लस करना है, उस वाले में पाई का प्लस नहीं करना. नाउ द सेकंड वन इज व्हाट विल बी आवर टू टेंजेंट इनवर्स x. टू टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होगा? तो इसके लिए बस अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, फॉर्मूले मैंने बोले थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो फॉर्मूले सभी को लर्न होनी चाहिए. उनके बिना तुम नहीं कर पाओगे. सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर. बट ये आया कैसे है? तो वही सेम मेथड अप्लाई करना है. दैट इज लेट आवर टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू y. सो फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट y एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट y एंड नाउ लुक इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो. इसको अपना याद करके रखो कि ये था. नाउ यू कैन सी दैट अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेना. नाउ वी हैव टू सोल्व द राइट हैंड साइड. Sin inverse 2x divided by 1 plus x square, this can be written as sin inverse. What is x? X is our tangent y. So we have to use this equation number 1 in this equation. So this will become our 2 tangent y divided by 1 plus tan square y. बट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री दिस इज इक्वल्स टू साइन 2y. ये तो साइन 2y का फॉर्मूला है. दैट मीन्स दिस विल बिकम अवर साइन 2y. साइन इनवर्स बाहर है, अंदर की तरफ साइन है तो साइन से साइन इनवर्स क्या होंगे? कैंसिल होंगे एंड वी विल हैव साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू सिंपली 2y. बट y इज आवर टेंजेंट इनवर्स x. दैट मीन्स वी विल हैव द फॉर्मूला like this, that is sin inverse 2x by 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. Similarly we can prove for the
cos formula. So 2 tan inverse x is also equals to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, because we know that our 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x, this is equals to cos 2x. ये तो किसका फॉर्मूला है? cos 2x का फॉर्मूला है. बस सिंपली जो ये किया था एज इट इज चलते हुए जाना और फॉर्मूला ये अप्लाई करके तुम एज इट इज इसको कर सकते हो. नाउ द थर्ड वन इज if you are having 2 tan inverse x, then now the third one formula is 2 tangent inverse x is equals to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. और ये कहाँ से आया है? We know that our tan 2x is equal to 2 tangent x divided by 1 minus tan square x. सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. बस tan 2x के प्लेस पर क्या पुट होगा? दिस वन, एंड यू विल गेट योर आंसर. सो अब तक जितना किया है ये सारा तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज. ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और ये फॉर्मूला लर्न करने के बाद कल से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. अगर तुम चाहो तो अपने एग्जाम्पल रीड कर सकते हो. यू कैन रीड द एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4. ये दोनों एग्जाम्पल है. यू कैन रीड दीज एग्जाम्पल्स बिकॉज इन एग्जाम्पल्स में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. सिंपली इनको इजीली कर सकते हो. बाकी के जो एग्जाम्पल वगैरह है वो हम कल करेंगे. सो योर होमवर्क is to do these formulas, learn these formulas and read example number 3 and example number 4.